Namaste. Very profound greetings to more than 800,000 Bharati in the land of their Karam Bhumi. It is our sound culture, and that makes us proud that we Indians strike wholesome balance between Janam Bhumi and Karam Bhumi. Friends, I am greatly touched by the warmth of reception. Look at my young friends, children, youngsters, boys and girls, brothers and sisters, elders. This reflects glory of our civilization. मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। कल जब His Highness Amir ने कहा, when I congratulated him on grandiose infrastructure and grandeur of the ceremony, spontaneously, out of heart, he expressed his gratitude to the skill contribution of Indian human resource. He expressed satisfaction and gratitude to the Indian companies for turning around development in Qatar. This is a big achievement for all of us. Our Bharat, under the dynamic leadership, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, is on the rise. Bharat is on the rise as never before. Our rise is unstoppable. दुनिया में पहली बार भारत, भारतीयता और भारत के नेतृत्व का मतलब बदल गया है। हमारी संस्कृति के अनुरूप, in consonance with our civilization ethos, our Prime Minister has given clarion call. War is no solution to any problem. दुनिया आज के दिन चुनौती महसूस कर रही है। उस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत की उपलब्धि सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आर्थिक मापदंड पर जब देखते हैं तो हमने जो हासिल किया है उसकी कुछ सालों पहले तो कल्पना नहीं होती थी। सोचते थे प्रधानमंत्री जी का विजन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हासिल होगा। कुछ माह सप्ताह पहले भारत, इंडिया became the 5th largest global economy. Overreaching our colonial rulers. It's a great achievement. I have no doubt
the milestone accomplishment of being the third largest global economy in the world will be around the decade. And by 2050, as some people from the industry are voicing, will be second largest. This development, soothing development, wholesome development, remarkable development, is by contribution of every Bharatiya, every Indian. 800,000 plus in this part of the world are also contributing to that. We have an ecosystem now in place, an ecosystem that was not there before. Every Indian can achieve his ambition. He has only to have an idea. Government support and money is not wanting in that. In 2022, India became number 1 in the number of unicorns. We are ahead of any other country in the world. And this indicates our path of growth. Brothers and sisters, ये जो विकास है, ये विकास स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, ये विकास शब्दों का नहीं है। 1989 में जब संसद सदस्य बना था, केंद्र में मंत्री बना था, तब मेरे हाथ में एक ताकत थी, 50 गैस कनेक्शन। आज मुझे कहते हुए भी डर लगता है, आप लोगों को कितना अजीब लगेगा, पर 3 दशक के करीब 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य के सामने ताकत थी। Look at the vision of the Prime Minister. 180 million gas connections, 18 करोड़ गैस कनेक्शंस गरीब परिवारों को मुफ्त में दिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा महारत हासिल किया है। धुएं से जो परेशानी माताओं बहनों को होती थी, उनके आंसू को इस सार्थक तरीके से पहुंचने का काम शासन व्यवस्था ने किया है। दुनिया जब सबसे बड़ी पीड़ा झेल रही थी कोविड की, देखिए भारत ने क्या अचीव किया। करीब 3 अरब वैक्सीनेशंस, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर उपलब्धि भारत ने की है। दुनिया के अंदर कोई देश इतना बड़ा महारत हासिल नहीं कर सका है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते पहले, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया, छोटा निर्णय नहीं था, कि हम 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोज भोजन उपलब्ध कराएंगे। चावल, सीरियल, पल्स। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपका सर फकर से ऊंचा होगा। 1 अप्रैल 2020 से आज तक अभी भी हर भारतीय को यह सुविधा मिल रही है, और संख्या है
80 करोड़ से ज्यादा। मैंने भारत का बदलता स्वरूप देखा है। कहां गई वो लंबी लाइनें जो बिल जमा कराने में हम देते थे? नहीं है। शासन व्यवस्था सरल हो गई है। देयर इज मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट। जो कुछ हो रहा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, और इसमें जो भी भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनका योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका पसीना है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शासन व्यवस्था का चिंतन और चिंता आपके लिए है, और जब भी कभी मौका आया है, ये दिखाने में कभी कमजोरी नहीं रही है। मेरा मानना है, मेरी दृढ़ मान्यता है, एवरी ब्रदर एंड सिस्टर वर्किंग इन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब is ambassador, emissary, representative of our ideas, our culture, our values, और ये कह सकते हैं भारत की रीति नीति मानवता के श्रेष्ठ सिद्धांतों पर रही है। भारत का सोच हमेशा दुनिया को देने का रहा है। शुरुआत देखिए, योगा डे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, दुनिया के देशों की संस्था यूनाइटेड नेशंस ने उस दिन को स्वीकार किया। एंड व्हाट kind of massive support was there? Countries of the world came together to do it. क्लाइमेट चेंज की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, एनर्जी क्राइसिस की बात हो, भारत बिलीव्स वासुदेव कुटुंबम। We believe इन वेलफेयर ऑफ ऑल। और ये हमारा जो थॉट प्रोसेस है, इसी थॉट प्रोसेस का नतीजा है कि आज के दिन भारत की जो राइज है वो पिरामिडिकल नहीं है। ये नहीं है कि कुछ मामलों में हम राहत दे रहे हैं और कुछ में नीचे हैं। आप चिंतन कीजिए, वी आर राइजिंग एज अ प्लेटो। समाज का कोई वर्ग फायदे से अछूता नहीं है। हर वर्ग के ऊपर असर पड़ रहा है, हर वर्ग उसका लाभ ले रहा है। बदलते हुए विश्व की आवश्यकताओं को देखते हुए एक नया सोच 34 साल बाद भारत में आया। नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। I can tell you, brothers and sisters, national education policy has been evolved, keeping in view contemporary requirements, historical perspective, ताकि हर भारतीय को एक पूरा मौका मिले for fullest exploitation of talent and potential। यह सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। आई ब्रिंग टू यू ऑल अ मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए, अ ट्राइबल वुमन full of sublimity. I had the good fortune to be governor with her.
is in the Rashtrapati Bhavan, setting highest of standards. I am greatly moved and touched by her addresses, her commitment. That is the greatest tribute we are paying to our tribal category, to our womanhood, और इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का कोई उदाहरण हो नहीं सकता. It is commitment of the government that we have to fully empower our women brothers and sisters. We have to secure for them participation at every level. और इसको मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं. महामहिम द्रौपदी मुर्मू का चुनाव एक बहुत बड़ा संकेत है. मैं यदि मेरे बारे में बात करता हूं, साधारण किसान में जन्मा, कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था. वकालत में स्थान बनाने से पहले जीवन के सब संकट मैंने महसूस किए हैं. ये दूर सोच का एक नतीजा है. ये पद नहीं है, ये कंधों पर आपके पसीने को मैं महसूस करूं, उसका आकलन करूं, उसके योगदान की प्रशंसा करूं, ये मेरे कंधों पर भार है. मेरा मानना है कि we are as good a nation as our citizens. हर मापदंड में हम खरे उतरेंगे, लोग देखेंगे कि हां, भारत बदल रहा है. बदलाव छोटे बात से की जाती है जिसका बड़ा प्रभाव होता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सफाई पर बहुत ध्यान दिया. आश्रम में उन्होंने खुद यह काम किया. पर हमने क्या देखा दशकों तक? एवरी इंडियन विल गो आउट ऑफ द कंट्री, ही विल नेवर थ्रो अ बनाना स्किन आउट ऑफ अ व्हीकल. और भारत में आकर यह हमारा अधिकार था. गाड़ी के बाहर तो फेंकना ही है. ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा. गाड़ी में क्यों रहे वो? भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छ भारत की शुरुआत की. और आज के दिन यह अभियान नहीं है, यह हमारी आर्थिक शक्ति और ग्रोथ का प्रमुख बिंदु बन गया है. माताओं बहनों को गांव में कितनी दिक्कत होती थी. देयर वॉज नो टॉयलेट. और भारत जैसे देश में यह सोचना कि हर घर में टॉयलेट हो, बहुत बड़ा काम है. दिस वॉज थॉट ऑफ, एग्जीक्यूटेड. और आज के दिन हम देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है. कुछ ही दिन पहले की बात है, पानी के मुद्दे को लेकर कई देश आए हुए थे. मुझे समापन में जाना पड़ा. पहले जब प्रेजेंटेशन किया गया तो कहा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है हर घर नल, कि हर घर में नल हो, नल में पानी हो, नल में क्वालिटी पानी हो, नल में हर रोज पानी हो. जब उन्होंने कहा कि हमने तो डिजिटल कर रखा है, brothers and sisters, I asked the secretary
a senior IAS officer कि यू क्लिक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं संसद सदस्य बना था 89 में। क्लिक किया, झुंझुनू आ गया। मैंने कहा क्लिक माई ब्लॉक, चिराव ब्लॉक को क्लिक किया। मैंने कहा क्लिक माई विलेज किठाना, उस विलेज किठाना को क्लिक किया गया। डिटेल आ गई कि इतने लोगों के घरों में जल नल से मिल रहा है। मैंने कहा नाम, हर एक का नाम आया, मेरे परिवार का भी नाम था उसमें। आप ये देखिए, जहां डेवलपमेंट का आकलन इतनी बारीकी से हो रहा है, उस देश की ग्रोथ के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लग ही नहीं सकता। अब इतने अच्छे वातावरण को, इतने हिस्टोरिक जायगेंटिक अचीवमेंट्स को, इतनी बढ़िया खीर को हम खराब कैसे होने दे सकते हैं किसी के कुछ भी कहने से? We cannot allow anyone to spoil and sully our growth trajectory. हर भारतीय का कर्तव्य है, he should always, she should always keep Bharat first. Our nation is always first. And the moment we do it, we will have an answer. कि कोई कुछ भी कह देगा और ये मान लेगा कि हम चिंतन नहीं करेंगे, हम हमारा मानस नहीं बताएंगे। वी मस्ट। मेरे को यहां आकर बहुत प्रसन्नता हुई है। Me and my wife are greatly touched by the reception, warmth of reception. हमारी बच्चियों ने जो स्नेह दिया है हमें, मैं समझता हूं it's a moment to be ever cherished by both of us. जहां एक और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री का संदेश आपको दे रहा हूं, that we are proud of you. We recognize your contribution. You are ambassadors of great things that are happening in the country. You are contributing for that. मैं एक विश्वास भी लेकर जा रहा हूं कि एम्बेसडर जो हैं बाहर, और कतर में 8 लाख से ज्यादा है, they will perform at optimum level. They will always make us proud, and they will strike wholesome balance between their land of activity, कर्म भूमि and जन्म भूमि. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए, दोनों के लिए ये यादगार पल हमारे हृदय पटल पर सदैव रहेंगे। धन्यवाद।